नहीं, मैंने पहले जब जा रहे थे मैंने बोला था आई थिंक इट बी 3-0। तो इंडिया विन नहीं ऑस्ट्रेलिया विन, अगर 3-0 भी हो जाए तो ठीक है। 5 टेस्ट में सीरीज है। उन लोगों को गलतफहमी बहुत ज़्यादा हो गई थी और मेरे को लगता है कि एक रियलिटी चेक तो हो चुका था। 3 मैच हार के गए न्यूजीलैंड से। तो पर ऑस्ट्रेलिया को आप अंडरमाइन कैसे कर सकते हो? आप पिछली बार गए थे, पहली बार गए थे तो वार्नर और वो नहीं थे। तो पिछली बार गए थे, बहुत बढ़िया काम किया आपने। जो काम किया पिछली बार जाके होता नहीं है। अब क्या था कि भाई वो है कि हम हर बार जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से जीत के आएंगे, ऐसा होता नहीं है। So I think we had overestimations about our team and we should have reality check. और WTC के चक्कर में 2 बार इतनी बुरी तरह हार चुके हो, nobody is bothered वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। अभी ऐसा नेसेंट कॉन्सेप्ट है कि उसकी ट्रैक्शन नहीं आई है। तो आप अगर वहाँ नहीं भी पहुँचते हो, जेनेरिकली एवरीबडी नोज विच टीम इज द बेस्ट। नाउ does anybody think that South Africa deserves? Of course they deserve because they have reached. किसी ने नाम ही नहीं लिया था उनका। साउथ अफ्रीका पहुंच गए टेस्ट चैंपियनशिप में। आप वहां पे अपनी सीरीज बचाओ। आई थिंक इवन इफ यू डोंट रीच WTC एंड यू बीट ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक व्हाट इज बिगर, एवरीबडी नोज एज अ क्रिकेटर। सो आई थिंक that's a given thing that Australia is better this series and our main big boys are not performing, and that is hurting the team. Individual performances in cricket, yeah, you get Nitish Reddy, wonderful, you got 100, but what good is that 100 when the team loses? This is the problem with our consuming fans, that they put individuals' performances ahead of the team. It's a team sport, you know. If somebody, and nobody's talking about Gukesh, he's become the world champion. He'll not get a single ad in the news. So this is what happens, because once you make these heroes and then they don't do well, then you get upset. So you are the ones who build them up, and we should realize that it's a team sport. We should consume it as such. Individual performance is only as good if your team wins. So we should treat it in such a manner that players also, they just don't get in that mode that okay, once we do well, it doesn't really matter if we lose, because once they do well, they'll get personal glory, personal contracts, money. But in the end, if your team is not winning, it's pointless. Sir, last day था 10 विकेट प्ले आउट करना था एक डे को, क्या इतना टफ था? प्ले आउट करने के लिए वो बैट्समैन ही नहीं हमारे पास, डर्टी बैटिंग। एवरीबडी इज अ स्टार, फ्लैम्बॉयंट मारने जा रहे हैं। जो परफॉर्मर्स कौन सा है? जायसवाल है, नीतीश रेड्डी है, बुमराह तो चलो जीनियस है आपके पास। इसके अलावा द यूजुअल सस्पेक्ट्स हैव नॉट इवन रेज्ड देयर हैंड इन दिस सीरीज एंड दैट्स हर्टिंग। We know ऋषभ पंत की बात होती है। Again, ऋषभ पंत also has created such an aura about him that whenever he does this is how he's become a star also. But this is a dangerous line, because that's the only way he plays. I know him since a 16-year-old. वो क्या, अब every time you are stuck and he plays the same way, the way he has won matches for India, but when he doesn't succeed, then everybody goes कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है. But it's not that. These are just cherry picking the points and finding some excuses. But Australia has outplayed you. They are a better team. Simple as that. No sir, but having said the same thing, वो shot was it needed? उसके लिए Travis Head था, वो fielder भी लगा हुआ था पीछे. He played it in the air and was caught. Yes, so this is hindsight is perfect vision. बड़ा अच्छा लगता है, you can always look back and say ऐसा होना चाहिए था। पर जब ऐसी बैटिंग करके उसने मैचेस जिताए भी हैं, तब कहते हैं वाह क्या जीनियस है। ये होता है। तो आई थिंक ही ऑल्सो नोज दैट। अब बट वो अपनी गेम कर्टेल करेगा, तब आप बोलोगे कि ठीक है। बट आई वुड प्रेफर, बिकॉज वंस यू आर प्लेइंग द 3 फॉर्मेट्स and each format you cannot please everybody, so you can't have your cake and eat it too. This is the way he's straddled, he's come back, that's why he's a hero. But I think the problem is bigger than just Rishabh Pant's that odd shot. It is collectively that you cannot bat dirty and ugly in a session to save a test match. This is the point. Sir, I'm talking about once again Virat and Rohit failed to deliver single digits को both of them. So यार I feel sorry. देखो इतना बड़ा player है, अच्छा it hurts when you see them struggle, because when this is the end of your career, what happens for me if you leave it too late, because there are millions of fans. I know I will get a lot of abuse today after this, but क्या है कि because people who are the fans, they will get these memories etched. When you're a great player, you'll remember them struggling. You don't want to leave the sport with these memories. देखिए, आज का परिणाम निराशाजनक तो है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिस तरह से हम पर्थ टेस्ट जीते थे और ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ हुआ था, उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद थी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट में हम जीत हासिल करेंगे। हमारे लोगों ने बड़ी कोशिश भी की, बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया, लेकिन बैटिंग लाइनअप उतना अच्छा नहीं कर पाई और उसकी वजह से जो है हम ये मैच हार गए। इसमें बाद में लग रहा था 5वें दिन कि हम शायद ड्रॉ करा ले जाएंगे, लेकिन वो सिचुएशन भी नहीं बनी। उसमें कोई विवादास्पद निर्णय जिसको लेकर गावस्कर ने भी बोला है और लोगों ने बोला है कि जो उसका यशस्वी जायसवाल का था वो आउट नहीं था। मैं भी मैच देख रहा था,
तो मैंने उसमें जो स्नोकोमीटर है उसमें तो क्लियर था कि टच नहीं किया, लेकिन वो थर्ड अंपायर का फैसला था। तो ठीक है, अब जो मैच का परिणाम आया, अब आगे हम सिडनी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक बात कहनी है, हमारा पर्सनल व्यू ये है कि इस मामले में टेक्निकल कमेटी को, आईसीसी को देखना चाहिए कि या तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जाए या जो इंडिविजुअल की ओपिनियन है थर्ड अंपायर की, उस हिसाब से जाए। एक कोई चीज तो होनी चाहिए, क्योंकि एक फैसले में आप स्नोकोमीटर के हिसाब से गए और दूसरे फैसलों में आपने उसको नहीं माना। तो ये जो है आईसीसी की टेक्निकल कमेटी को ये डिसाइड देखना चाहिए कि कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि जब आप ग्राउंड अंपायर को, फील्ड अंपायर के निर्णय को बदलते हो तो उसके लिए काफी मजबूत जो है कारण होने चाहिए।